Hey everyone, welcome back. So first of all, let me wish you a very happy new year. So in this new year, I'll be presenting you a complete new video for the placement roadmap that you must follow to get into top product-based companies in 2023. So please note down that this is not a placement roadmap for service-based company. उसके लिए मैं बाद में कोई videos ले आऊँगा. But this is completely for all the product-based companies just like Google, Facebook, Amazon, Flipkart, Ola, Uber, Zomato, Adobe, etc. तो उससे पहले special thanks to Unacademy for sponsoring this video. So in this new year in 2023, Unacademy लेकर आ रहे बहुत सारे new batches for GATE 24 and 25 aspirant. There will be a brand new Udaan batch for GATE 24 aspirant and a Bunyad batch for GATE 25 aspirant, and in both the batches all the India's top educators like Sanjit Jain sir, Reddy sir, Shweta ma'am, Vishwadeep sir, they'll be teaching you from the starting to end. They'll be covering the entire syllabus and all these batches will be available in English language. And if you want to attend the classes in English language, there'll be a complete new batch called Ignite 2.0 and also a foundation batch for GATE 25 aspirants, and all those leading educators will be teaching you and covering you all your basic stuffs. And सिर्फ syllabus coverage भी नहीं, इसके साथ आपकी test series, इसके साथ आपकी doubt solving session, आपका live mentorship session, everything will be provided along with this batch. उसके साथ आपका printed books भी deliver किया जाएगा आपकी घर पे, डिजिटल नोट एंड हर एक दिन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा. तो नया साल के लिए ये प्लेज भी ले लेना दैट आई वांट टू क्रैक गेट एग्जाम इन दिस कमिंग ईयर, एंड उसके लिए भी अनअकैडमी इज गिविंग यू अ मैसिव 23% डिस्काउंट इन दिस न्यू ईयर 2023. So just use my code ManishM10 to get this really cool exciting offer, but make sure this offer won't last long. It's a very limited period offer, so hurry up, and with Unacademy let's crack it. So let's first talk about the programming language. You don't need to learn a lots of programming language, only one language is required to solve any DSA problem, or in case of your interview in the top product based companies, you just need one programming language. So you can choose any one between C++, Java and Python. Don't choose C language because C language doesn't have that rich library support. So DSA problem solve करने के लिए आपको library की ज़रूरत होगी. So in that case you'll be facing a lot of trouble. You need to write down all the codes by your hand. But in case of C++, Java, Python, all these languages have the rich library support. You can learn C++ or Java using YouTube, which is the best resource according to me, or you can learn using GFG, which means Geeks for Geeks, or you can learn using HackerRank. For example, in HackerRank there are a bunch of different programming language like C++, Java, Python, JavaScript. So just select any language. There will be some problems, there will be some theory, and there will be some practice section. You can practice from that. And the same thing goes for GFG as well. And YouTube में तो बहुत सारे materials है, बहुत सारे lectures भी है. So you can use any of that. Just use these resources and choose any of the language between C++, Java or Python. Now the second step in your procedure would be DSA. So programming सीखने में आपको लगभग 1 से 2 वीक लगेगा. So I can recommend you 1 to 2 weeks. If you are a complete beginner, you will be requiring some more amount of time. But if you are having at least a minimal coding idea, you should be requiring at least 1 to 2 weeks to learn any programming language. Be it let's say you learn C, so C++ सीखने में आपको तो 1 हफ्ते में काफ़ी है, ठीक है. जावा सीखने में भी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते में easily सीख सकते हो, ठीक है. So 1 to 2 weeks learning programming language would be sufficient. Then you come back to DSA and use DSA, or in fact practice DSA using the same language that you learned in your first step, right? So this is the second step, and this is the most crucial step because in every companies you will be requiring to solve DSA problem. Be it any role, कोई भी रोल में आप जाओगे आपको DSA सॉल्व करना होगा. दिस इज द फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. जस्ट लाइक आपका जेई में क्या होता है, आप कंप्यूटर साइंस चूज करो, मैकेनिकल चूज करो, कोई भी ब्रांच चूज करो, आपको सेम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. सो इन द सेम वे DSA वुड बी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू गेट एनी रोल इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. तो नाउ DSA आपको कहाँ से सीखना है? DSA सीखने का सबसे बड़ी रिसोर्स आई कैन से दैट इज फ्रीली अवेलेबल, दैट इज यूट्यूब. बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट किया. सो यू कैन चूज यूट्यूब, यू कैन ट्रस्ट यूट्यूब. ऑल द रिसोर्सेज आर कंप्लीटली फ्री. आई एम अगेन रेफरिंग दैट you don't need to require any paid material. This is completely free. Like all the lectures are completely free on YouTube. You can entirely cover your data structure, you can entirely cover your algorithm. Now the second resource is of course your textbook. If you have any textbook,
यू कैन ऑब्वियसली रेफर, बिकॉज अगर आप सेमेस्टर में हो, आपकी शायद सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर आता है, फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एल्गोरिथम आता है, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ टेक्स्ट बुक. इफ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक, यू कैन डाउनलोड द PDF लाइक CLRS फॉर एल्गोरिथम. डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप नरसिम्हा करमुंची रेफर कर सकते हो. एंड स्पेशली अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी टेक्स्ट बुक वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज ऑल्सो अनदर गुड रिसोर्स दैट इज Geeks for Geeks. Geeks for Geeks में अलग अलग करके डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका थ्योरी, उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम सब कुछ दिया हुआ है. तो प्लीज मेक यूज ऑफ दैट. दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स. इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्स, अदर रिसोर्स, मतलब आप हैकर आर्थ पे भी सीख सकते हो, हैकर रैंक पे भी सीख सकते हो. बट दीज आर द बेसिक रिसोर्स. एंड ये रिसोर्स ऐसा ही है, मतलब आप स्टार्टिंग से अगर कोई भी एक रिसोर्स को फॉलो करोगे, मतलब अगर यूट्यूब से आप वीडियो देखोगे, GFG पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपका पूरा DSA कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नाउ दिस इज द लर्निंग पार्ट. आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छी रिसोर्स है GFG एंड द सेकेंड वन इज LeetCode. आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो. LeetCode का बहुत सारा प्रॉब्लम फ्री है, बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली फ्री. इसमें पेड मटेरियल भी है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा LeetCode का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने का. GFG में सब कुछ फ्री में मिल जाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका और एक यूज आप कर सकते हो, दैट इज द SDE शीट. बट दिस इज प्योरली फॉर योर प्रैक्टिस. आपका अगर लर्निंग हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए आप डेफिनेटली कोई भी जगह पे जाओ, Geeks for Geeks और LeetCode में. एंड SDE शीट से जो प्रॉब्लम आए, कुछ जगह पे 400 प्रॉब्लम है, 450 प्रॉब्लम है, 500 प्रॉब्लम है, तो अराउंड दैट प्रॉब्लम इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर तो आप SDE शीट फॉलो कर सकते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ SDE शीट एक्चुअली अवेलेबल. Geeks for Geeks में भी अगर आप जाओगे, उनका खुद का एक SDE शीट है, ड्राइवर का SDE शीट है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स हैव मेड देयर ओन SDE शीट. तो आप कोई भी एक रेफर कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर देयर, तो उसको डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है. नाउ अगर आपका DSA थोड़ा स्ट्रांग है, आपका आइडिया है, तो आपको 400-500 प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्योरली इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो, आपके पास 1-1.5 महीने 2 महीने है, तो आप LeetCode का एक 150 DSA क्वेश्चंस और 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है. और या फिर Geeks for Geeks में एक मस्ट डू कोडिंग प्रॉब्लम्स है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. उसी दोनों को, उसमें से कोई भी एक आपको फॉलो कर लेना है. अराउंड 150 से 180 प्रॉब्लम है. आप इजीली 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो. इवन यू कैन डू इट इन 1 मंथ ऑल्सो. तो वो दोनों अगर आपकी हो जाए, आप 2 महीने के अंदर, एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर कोई भी कंपनी के लिए रेडी हो जाओगे. मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर देयर इन दोस 2 सेक्शंस. ठीक है. नाउ आपका स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड स्टेप, दैट इज द प्रोजेक्ट. आपको ये सारे स्टेप करने के बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आप एक लैंग्वेज सीखो, उसके साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हो. आप डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो, इसके साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज पहले सीखना है, उसके बाद DSA सीखना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं. स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली व्हाइल लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, आजकल जो चीज़ रिक्रूटर चाहते हैं, उनका जो खुद की कंपनी का काम होता है उसके रिलेटेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप वेब में चूज़ कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में चूज़ कर सकते हो, आप एंड्रॉयड में कर सकते हो, आप सिक्योरिटी में कर सकते हो. अगर आप मशीन लर्निंग AI पे जाना चाहते हो तो उसमें आपको ML AI प्रोजेक्ट हो गया, आपका डीप लर्निंग प्रोजेक्ट हो गया, आपका NLP प्रोजेक्ट हो गया, आपका रोबोटिक्स प्रोजेक्ट हो गया. तो ये डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी. फॉर एग्जांपल, मैंने जब VMware की इंटरव्यू दिया था तो मेरा एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था. मेरा एक्चुअली 2 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था जो मैंने IIT कानपुर में किया था. तो वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट उनका बहुत ही काम पे आए, उनको बहुत ही पसंद आए, क्योंकि दोज 2 ब्लॉकचेन मैकेनिज्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन दोज कंपनीज. तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट की कोई एक प्रोजेक्ट अगर कोई कंपनी में ऑलरेडी काम चल रहे एंड आपका उसके बारे में नॉलेज है, तो ऑब्वियसली यू आर एन एडेड एडवांटेज फॉर दैट कंपनी. आपका शॉर्ट लिस्टिंग में आपका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा. सो दैट्स वाई लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. इसके लिए आप रिसोर्स फॉलो कर सकते हो. गिटहब इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कुछ गिटहब लिंक जिससे आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो. बट डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट. आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका खुद का इम्प्लीमेंट करो, खुद से इम्प्लीमेंट करो. देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, तो खुद से इम्प्लीमेंट करो. गिटहब इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स. ऑल्सो देयर विल बी सम रिसोर्स अवेलेबल इन यूट्यूब ऑल्सो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग से स्क्रैच से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का डेमो भी दिखाएगा. बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी है, मैं कुछ चैनल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ स्टेप, दैट इज द उप्स और
low level design. LLD मतलब low level design. There is two types of design available, that is called the LLD यानी कि low level design, and another is HLD, high level design. So high level design in most of the cases SD2, जो SD1 से SD2 में स्विच करना चाहते हैं तो SD2 के लिए रिक्वायर्ड है, बट डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल फोकस ऑन UPS और LLD फॉर द SD1 रोल. अब अगर एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो सिस्टम डिजाइन का कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल नॉट आस्क. ठीक है, तो ये कहाँ से आप सीखोगे, या आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपका अगर कोई टेक्स्ट बुक है आपका सेमेस्टर में या फिर आपका कॉलेज में, उससे आप सीख सकते हो. नहीं तो Geeks for Geeks में बहुत ही अच्छी रिसोर्स है, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, there is a very good resource on Geeks for Geeks. Also there are very good tutorial available in YouTube also. तो इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा. इससे आप UPS कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सीख सकते हो, बिकॉज UPS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब काम करोगे, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे DSA प्रॉब्लम, उसमें UPS कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ नहीं होते हैं या फिर उतना हाई लेवल पे यूज़ नहीं होता है. बट अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, in most of the cases there will be huge code base, lakhs of lines of code है. तो उसी केस में UPS will be very useful. There will be hundreds of classes, objects, कैसे वो क्रिएट हो रहा है, कैसे वो यूज़ हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करना है, कैसे करना है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो इंडस्ट्री में जाके आप बहुत सफ़र करोगे. इसलिए इंटरव्यू में UPS कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. इवन आपकी जो कोडिंग एग्जाम होते हैं उसमें भी देयर विल बी सम MCQ राउंड जहाँ पे UPS कॉन्सेप्ट पूछा जाता है. ठीक है, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज टू लर्न कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट, दैट इज द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स. इसमें क्या क्या है, इसमें है OS, नेटवर्किंग, DBMS एंड सम सॉर्ट ऑफ आई कैन से आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन. ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली OS, नेटवर्किंग, DBMS, ये तो आपको होना ही चाहिए. ठीक है, तो ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो. देखो, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यू एंड इन कोडिंग एग्जाम भी. कुछ जगह पे आपको 2-3 कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ 10, 20 या फिर 30 भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है. मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनीज का भी एग्जाम में बैठा था जिसमें ऐसे क्वेश्चन आया. तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, DBMS, इन तीनों सब्जेक्ट से तो बहुत क्वेश्चन आता है. आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका डिजिटल लॉजिक भी इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे कंपनीज पूछा भी था ड्यूरिंग आवर प्लेसमेंट टाइम. तो इंटरव्यू में शायद डिजिटल लॉजिक नहीं पूछा जाएगा, बट कोडिंग एग्जाम में ये शायद पूछा जा सकता है. अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से पता होता है. ठीक है, मैंने मेरा गेट एग्जाम का नोट भी प्रिपेयर किया था मेरा MTech प्लेसमेंट के टाइम, तो उसी से काफ़ी हो जाएगा. अगर आपको और भी ज़्यादा रिसोर्स चाहिए तो आप डेफिनेटली GFG का एक बहुत अच्छी सेक्शन है, सब्जेक्ट सेक्शन है, उससे पढ़ सकते हो. या फिर आप बहुत सारे वीडियोज़ है, एक घंटा की या फिर 1-1.5 घंटा की बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर कर देगा, जो स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है. आपका DBMS क्लियर कर देगा, आपका नेटवर्किंग भी क्लियर कर देगा. तो यूट्यूब से भी आप रेफर कर सकते हो, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस फ्रॉम द Geeks for Geeks सेक्शन. Geeks for Geeks का बहुत ही अच्छा पेज है एंड दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है, जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस are already asked in the interview or are most likely to be asked in your next interview. So ये हो गया आपका 5 स्टेप. Number 1, you should learn programming language. Second one is DSA. Third one is project. Fourth one is OOPS. And the fifth one is computer science subject. After all of the thing is done, you should make your resume. उसके लिए बाद में एक वीडियो मैं लाऊंगा, कैसा था मेरा रेज्यूमे, कैसे डिज़ाइन करना है आपका रेज्यूमे, क्या क्या एग्जैक्टली डालना है, उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो लाऊंगा, एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा. सो विथ ऑल दैट थिंग्स दैट कंबाइन टुगेदर would be your resume. And remember one thing very carefully, that your resume is your identity. आप कंपनी की रिक्रूटर के पास जाके आपका कुछ चीज़ शो करने से पहले वो आपको सिलेक्ट कैसे करेगा, दैट इज बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे. तो उसमें जो चीज़ होगा उसके ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन, आपका फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा. अगर आप फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग से पहले आप निकल जाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग DSA, नो पॉइंट ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट्स, नो पॉइंट ऑफ लर्निंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आपको जाना है, आपको एटलीस्ट एग्जाम देना है, इंटरव्यू तक जाना है. सो इन दैट केस रेज्यूमे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. बस इसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चन है, प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.